Good morning, everybody. My dear guys, as per the current affairs, on the base of economy, several deals which has been happening in our country with other different organizations, international organizations. Like I'm going to discuss on the base of FDI and ADB, Asian Development Bank, foreign direct investment. As you know, as per the analysis of newspaper concerning to the Hindus and the Economist Times, I have two newspapers. On the base of two newspapers, I will describe each and every part, each and every descriptions concerning to the deal what happened between Indian government and the Asian Development Bank. Because a day before, there is a deal between India and Asian Development Bank. And this deal was completely based to upgrade the road constructions like state highways and district roads which are based on the base of regional, we can say, for the particular individual states like Maharashtra. So what was the deal? Which types of interpretations of deal has been dealt between Indian government and Asian Development Bank? So now I am going to discuss and give you analysis what this deal is and what is the infrastructure reforms concerning to Asian Development Banks. Now first we have to know what do you mean by Asian Development Bank. ADB क्या है? Actually Asian Development Bank, first we have to know Asian Development Bank, this is a bank, this is a regional development bank first, which was established on 19th December 1966, which is headquartered in Manila, ठीक है, फिलीपींस. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में पड़ता है. इज इट ओके? एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द रीजनल डेवलपमेंट बैंक, यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है. इज इट ओके? नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी मेंबर्स इन एशियन डेवलपमेंट करंटली, तो एक्चुअली एशियन डेवलपमेंट बैंक नाउ हैज ओनली 68 members. Out of 68 members, 49 members from within Asia. तो अभी वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो टोटल मेंबर्स कंट्रीज हैं वह 68 हैं, जिसमें 49 जो हैं वह एशिया तथा एशिया से आसपास से रिलेटेड हो जाते हैं. जापान इज ऑल्सो अ एशियन नेशन. जापान होल्ड्स लार्जेस्ट प्रोपोर्शंस ऑफ द शेयर्स इन एशियन डेवलपमेंट बैंक, फॉलोड बाय यूएसए. यानी यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद हमारा जापान सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कह सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में ये शेयर कह सकते हैं, शेयर ये करता है, शेयर करने का ये अपने कैपेसिटी को रखता है. एक्चुअली व्हेन एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज लॉन्च established, there was a motto, there was an aim, and what aim and objectives was revert we have to discuss today. Actually Asian Development Bank has the aim to promote social and economic development in Asia and Pacific region. तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था, इसका मुख्य जो लक्ष्य था और जो लक्ष्य है, इसका मुख्य लक्ष्य है कि एशिया तथा जितने भी पैसिफिक रीजन्स हैं वे सारे को हम डेवलप करेंगे और उनको डेवलप करने में उनका आर्थिक तथा हम कह सकते हैं सामाजिक गतिविधि को हम आगे बढ़ाएंगे. दैट्स वाई वी कैन से एशियन डेवलपमेंट बैंक इज कमिटेड टू अचीविंग अ प्रोस्पेरस, इंक्लूसिव, रेसिलियंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक रीजन while sustaining efforts to we can say eradicate extreme poverty. तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्थापना की गई थी यह खास तौर पे इसलिए कमिटेड हो जाता है कि जितने भी एशिया तथा पैसिफिक रीजन्स में सबसे पहला हमारे इकोनॉमिक हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी को लाना, साथ ही साथ रेसिलियंट को डेवलप करना, सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करना, आप कह सकते हैं आत्मनिर्भरता को बनाना, और सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो बात हो जाती है वो होती है टू एराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी. जो अत्यंत जहाँ पर गरीबी है इस सारे क्षेत्रों में, वहाँ से गरीबी को समाप्त कर देना ही इसका मेन मकसद होता है. इज इट ओके? लाइक वी कैन से समटाइम्स अदर व्हेनेवर we are going to discuss about different types of reforms
different types of upgradations, like that technical assistance. In that scenario, Asian Development Bank also provides technical assistance for the preparations and executions of development projects and programs and advisory services also. Because if you are talking about the banking systems, if I am talking about the financial inclusions among the countries, those are the members of ADB. In that interpretation, several challenges can be occurred on the basis of technical assistance, technical help. In that scenario, whenever it is appear to be felt, in that scenario, it can also assist the collaborations on the basis of technical networking and different types of episodes which can be included to make the stability, to make the modern and upgraded. This was the scenario can be held. Like if you are talking about the responsibility, so it is also responsible to the request for assistance in coordinating development policies and plans to developing members countries. Like I am talking about, only 68 countries are the members country of Asian Development Bank. In now, when it has been felt that these types of challenges and when these types of requests can be amended, held to Asian Development Bank, Asian Development Bank is abide by we can say establish and implement the assistance which can be in the favor of that stability of the economy. And it is also responsible and responding to the request for the assistance coordinating development policies also, because sometimes other whenever it can be occurred that a policy must be made in the favor of that stability to economy. This is also responsible, accountable to make the provisions and a strategy which can be a good marks of the policies by which that institutions and that members country can make a change and transform its financially, sustainability and different reforms of their, we can say, mechanisms. In this scenario, we can find out the plans of developing members countries. So these were the issues, but what happened currently whenever we are discussing about the current, so as per the current data, if I am going to discuss, okay, so the current data is that finally on 28th May 2020, there was a deal between India and Asian Development Bank. This is a recent news, upgrade news. So we must remember, and the business must be included in our mind. That's why several questions can be occurred before you. Then you have to go through that participations of the questions. What the examinations asked, and what is the interpretations of the total data which has been analyzed under this deal. So actually under this, ADB and the government of India have finally signed a $177 million loan. Now Indian government got $177 million of the loans from ADB, Asian Development Bank. Why? To upgrade state highways and major district roads in Maharashtra. Because now, as per the request, as per the demand, whenever it was analyzed, felt by Maharashtra government, that the funding must be in the enough and sufficient by which these types of infrastructure can be developed. Finally, Government of India got the deal with Asian Development Bank. If you are talking about the what will the sources and what will be uses and utilizations of $177 billion loans which has been gained by Asian Development Bank, my dear guys, this project will upgrade 2 major districts roads, okay, and 11 state highways. यानी जो हमारे पास $177 बिलियन का जो भारत सरकार ने लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से,
इससे ये फायदा होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में और महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा 2 जो होंगे बड़े बड़े हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स रोड का डेवलपमेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ 11 ऐसे स्टेट हाईवेज होंगे जिनमें एक बहुत बड़ी बदलाव की जाएगी, उनकी एक कह सकते हैं मरम्मत की जाएगी, एक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, दिस कंबाइंड लेंथ ऑफ 450 किलोमीटर्स, जिसकी लंबाई जो होगी 450 किलोमीटर होगा। इज इट ओके? देयर आर सेवरल फ्रेमवर्क्स we have to study under road constructions of the safety also, because the road safety audit framework says that this project will strengthen road safety measures by developing a road safety audit framework that will also protect vulnerable groups such as the elderly, women, children, and such we can say the following: the best international practices which can be held and practices there, those are exercised. It mean to say, यदि देखा जाए तो रोड सुरक्षा के मद्देनज़र कह सकते हैं, वहाँ पर इस प्रोजेक्ट के द्वारा बहुत बड़ी मजबूती भी प्राप्त होगी, और उस मजबूती के आधार पर हम कह सकते हैं कि रोड सेफ्टी जो होगा, रोड सुरक्षात्मक जो कार्यकलाप किए जाएंगे, वह कहीं ना कहीं एक वुलनरेबल ग्रुप्स ऑफ दिस सेफ्टी का एक कार्य कहीं ना कहीं करेगा, जो खास तौर पे एल्डरली के लिए हो सकता है, वीमेन के लिए हो सकता है, चाइल्ड के लिए हो सकता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे पास इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस होते हैं, दोज कैन बी यूटिलाइज अंडर दिस एपिसोड्स। इन दिस सिनेरियो, फाइनली द अपग्रेडेशंस ऑफ द मेंटेनिंग द रोड्स एंड द सिस्टम्स फॉर व्हाट the state government of the Maharashtra asked for, there was a reason to find out the project which will upgrade the roads maintenance system also, by we can say encouraging 5-year performance based on the maintenance, obligations to contact the sustained assets quite and quality and services levels. Now that if we have to develop, whenever our state got infrastructure concerning to company based, industrial based, raw material based, all of these scenarios must be maintained on the basis of road communications, because the productions can be produced from the industries. In that scenario, whenever these productions can't be, we can say, carried out from one place to another, then how it can make a business and make a balance to the industrial revolutions. So this is also core sector. This is also core sector of that particular state government to find out and to develop, by which the sustainability of the communications of the transport can be occurred, and the responsibility of this security and safety which can be imposed to the state government to provide different types of safety, and those can be vulnerably done one place to other, and this can also make a balance, make a stability in not only in the economy of that particular states, but also per capita of that particular state as well as the people. तो इससे हमारा ये भी फायदा हो सकते हैं. For this, finally government has also launched training for PWS and PWD staffs also. Like this project will completely focus on the training the Maharashtra Public Works Department project and project staffs to, we can say, build their capacity in climate changes and climate change adaptations. It was the environment, it was the climate, it was the monsoon transformation sometimes or other. When it can be occurred, then what will be happened to that particular infrastructure which has been developed by the particular government, and the funding which has been invested by the government, what is the output can be occurred and remained of that. So these types of, we can say, disaster resilient and resilient in the features in the road system, road design, road maintenance,
different plannings in road safety can be occurred as per the functional part which can be occurred by the government. तो ये सरकार के लिए होती है. सेवरल बेनिफिट्स कैन बी occurred, इससे बहुत सारी प्रॉफिट भी हो सकती है किसी भी सरकार की, किसी भी राज्य की सरकार की. जब वो भिन्न भिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन को डेवलप कर देते हैं, तो उससे सरकार को भी फायदा होती तथा वहाँ की जो भी जनसंख्या होता है, जो वहाँ की कह सकते हैं जो लोग हैं, उन्हें भी प्रॉफिट होते हैं. उससे बड़ी फ़ायदा क्या होती है? सबसे बड़ी फ़ायदा होती है कि जो बेटर कनेक्टिविटी जो होता है, ठीक है, वो बेटर कनेक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज एक्सेस टू द मार्केट्स. तो एक हमारा बाजार के साथ एक हमारा कनेक्टिविटी को सही कर देता है, सुचारू ढंग से, सुचारू रूप से वह प्रतीत हो जाती है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो जाते हैं. जैसे मान लीजिए रोड का कंस्ट्रक्शन होती है तो देयर लेबरर मस्ट बी डिमांडेड. तो वेन एवर लेबरर कैन बी फुलफिल्ड एंड सप्लाइड, देयर इज ऑल्सो अ पार्ट which can also occur and we can say establish the productions of the labor market. So this is also opportunities, and this opportunity and services can fulfill the demand of that particular peoples manually or physically. So this is also betterment of that particular people, of that individual estates. Secondly, what can happen? It also improved the mobility. That's why we can say it can also expand development and livelihood opportunity outside of the estates. Major urban estates, major urban centers to we can say second tiers cities and towns, thus reducing income disparities. Whenever government make roads, government we can say build roads and different means of communications, means of transport, which is in sustainability in the form. So there is many and more we can say opportunity can be occurred for all of the particular people. Like we can also save time. Whenever we have the channelizations, means of transport and communication, what we have to do? By dint of that particular facilities, several challenges can be completely solved at once, whatever we want. So this was also interpretation, this was also profit we can say by which we can get. तो इससे एक बहुत बड़ी ये हमारा फायदा भी हो सकता है. दूसरा क्या है कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे भारत में जो FDI की हम बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो अभी FDI भारत में देखा जाए तो एज पर द रिपोर्ट विच आई एम मेकिंग अंडरस्टैंड ऑन द बेस ऑफ PIB, तो PIB की रिपोर्ट के आधार पे यदि देखा जाए, फिर NSO का रिपोर्ट देखा जाए, सॉरी CSO का रिपोर्ट देखा जाए, तो ये सारे से पता लगता है कि अभी भारत में FDI गॉट डबल्ड. तो भारत में भी FDI जो होता है हमारा डबल हो चुका है. फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट डू मीन बाय FDI. FDI है क्या? Actually, FDI mean to say foreign direct investment, and this is an investment. सबसे पहले याद रखें कि FDI जो होता है एक हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, which is made by a firm, जो एक फर्म के द्वारा, एक कंपनी के द्वारा, एक इंडिविजुअल्स इन वन कंट्री, किसी भी कंट्री में किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा इसको बनाया जाता है इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री. इट मीन टू से दिस इज अ पार्ट ऑफ फंडिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट which can be coined by the people of that indigenous country having the motto to invest in the other country. This is the part of FDI. इसको आप दूसरे शब्द में समझ सकते हैं. जैसे मान लिया जाए कोई भारत के लोग वो फंडिंग किसी दूसरे देश में करना चाहते हैं, या कोई दूसरा देश के इंसान हमारे भारत में फंडिंग करना चाहता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहता है, एंड बाय विच वी कैन से प्रॉफिट्स ऑफ द रिसोर्सेस कैन बी अकर्ड, जिसके द्वारा वो एक लाभ का कह सकते हैं स्रोत को भी उत्सर्जित करना चाहता है, ठीक है. तो दीज आर द पार्ट ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सम प्रोविजन, सम रूल्स, regulations of all particular nations have. Whenever an investor want to invest in other country,
he or she must go through the different individuals of the rules and regulations because they are abided by. Sometimes so that it can be got relieved because like if I'm talking about the developing country as India, तो जितने भी डेवलपिंग कंट्री है वो क्या करते हैं कि एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों में रियायत देते हैं, रिलीफ देते हैं, ठीक है। तो उस आधार पे हम क्या करते हैं कि फॉरेन जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। लाइक वी कैन से जो हमारे पास रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको या तो हम उसको बहुत लेजिबल कर देते हैं, लिबरल कर देते हैं। सिक्योरिटी देने का प्रतिबंध जो हमारा था, वो सिक्योरिटी देने को आप किसी को एश्योर्ड करते हैं कि ठीक है भैया मैं आपको सुरक्षा दूंगा, आई विल प्रोवाइड यू लैंड, आई विल प्रोवाइड डिफरेंट कम्युनिकेशंस एंड मीन्स। तो ये सारे जो चीजेस होते हैं दोज फैक्टर्स विच कैन बी एनालाइज्ड अंडर एफडीआई एंड ड्यू टू दैट वेन एवर द सर्विस फैसिलिटी इज इन द प्राइम लेवल, देन फाइनली व्हाट हैपेंड, foreign investors can attract and they also wish to invest in your particular country by which several opportunity can be occurred। तो उससे क्या होती है कि भिन्न भिन्न प्रकार की अवसर की समता कह सकते हैं का उत्सर्जन होता है। लाइक जैसे मान लिया जाए कि अभी हमने देखा कि टीसीएस ने बोला कि चलो भैया बिहार में मैं टीसीएस का कंपनी खोलूंगा जिससे कि मैं लोगों का रोजगार दूंगा। तो जो ही टीसीएस मान लिया जाए टाटा हमारे बिहार में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उनको क्या चाहिए, सबसे पहले उन्हें लैंड चाहिए। ओके, तो लैंड मायने से बात, तो लैंड तो कहीं लेके नहीं, तो यहीं के किसी भी कह सकते हैं कि किसान से ही वो लेंगे, लैंडलॉर्ड से लेंगे, तो इससे उन्हें पैसा मिलेगा। अब जो डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट में बहुत सारे उनको मजदूर की आवश्यकता होगी, तो मजदूर को डिमांड करेंगे, मजदूर को लाएंगे, ठीक है। तो जो मजदूर आएंगे तो उनको वेजेस देना होगा। तो इससे क्या होगा, लोगों की जो एक कह सकते हैं मजदूरी या एम्प्लॉयमेंट जो हम कह सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी होता है ये उनको फुलफिल कर दिया गया, चाहे वो डेली बेसिस हो चाहे मंथली बेसिस हो, जो भी हो, ठीक है। साथ ही साथ अब उसी चीज़ को चलाने के लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, हो सकता है कि उनको बिल्डिंग भी चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें की आवश्यकता हो सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सकता है। ईच एंड एवरी फॉर ऑल फैसिलिटीज ही और सी हैज़ टू पे। तो उनको एक ही काम है भैया कि जो भी वो यूटिलाइज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उनके एवज में उनको क्या करना होगा, उनके लिए उनको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगी, सरकार को चाहे उनसे टैक्स के रूप में प्राप्ति होगा, प्रोडक्शन करेंगे उसमें भी उनको प्राप्ति होगी, एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हैं सर, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लगाएंगे। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। लोगों की पर कैपिटा इनकम में एक बहुत बड़ा इसका कह सकते हैं कंट्रीब्यूशंस हो सकता है, ठीक है। अवसर की क्षमता कह सकते हैं, अवसर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एमर्ज किया जा सकता है, इस्टेब्लिश की जा सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हो सकते हैं। और स्पेशली कह सकते हैं कि यदि हमारा रॉ मटेरियल बेस्ड हमारा कोई इंडस्ट्री आता है, इन्वेस्टर्स आते हैं एफडीआई को लेकर के, तो उससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में भी एक बहुत बड़ा बूस्ट हो जाता है। क्योंकि जो भी वो मान लिया जाए कि फर्म्स लगा रहे हैं, जो कंपनियां लगा रहे हैं, यदि एग्रीकल्चर बेस्ड है तो रॉ मटेरियल की उनकी डिमांड होगी। अब जब रॉ मटेरियल की उनको डिमांड होगा तो माइनस उसे फुलफिल करना वहाँ के किसानों का ये सबसे पहला कर्तव्य बन जाता है, दायित्व हो जाता है। तो इसको फुलफिल करने में कहीं ना कहीं लग जाएंगे। तो इसके लिए वो फ्री में तो करेंगे नहीं, उसके लिए भी उनको कुछ पेमेंट होगा, उनको भिन्न भिन्न प्रकार के फैसिलिटीज़ होंगे। उनको करने के लिए हो सकता है कि वो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो कहीं ना कहीं उनको आप कह सकते हैं कि मॉडर्नाइज करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आप कह सकते हैं कि मशीनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो अत्याधुनिक हो सकता है, मॉडर्नाइज हो सकता है। तो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द बेनिफिट्स विच कैन बी गेन्ड बाय एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन द जनरल सेंस वी कैन से एफडीआई takes place when an investor establishes foreign businesses, okay, operations or acquire foreign businesses assets, including establishing owners or controlling, we can say, interests in a foreign company. Like we can say
सैमसंग इज़ अ कंपनी फ्रॉम साउथ कोरिया, लेकिन वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंडिया में वो अपना ब्रांडिंग भी कर रहा है। तो इसके लिए मायने सी बात है कि उनको पहले तो उनको कुछ लॉ एंड ऑर्डर होंगे देश की सरकार की, जो उसको उन्होंने फॉलो किया होगा, और साथ ही साथ वो यहाँ पर जब कंपनी को, फर्म को जब उन्होंने इस्टेब्लिश किया तो उसके लिए उनको भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को उपलब्ध कराया गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वह एक फॉरेन कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट किया तो इसके पीछे उनका एक ही मोटो था कि वह फॉरेन बिजनेस का एक फैक्टर का रूप हो जाए, फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यह पूर्ण रूप से देखा जाए तो जो हमारा FII होता है, FPI, तो जो हमारा FPI होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी FPI से कंप्लीटली अलग हो जाता है। ओके, वेयर द फॉरेन एंटिटीज मेरेली बाय इक्विटी शेयर्स, तो जो हमारे पास फॉरेन एंटिटी जो होते हैं वह मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो वो हमारा क्या होता है कि इक्विटी शेयर करता है। ठीक है, और वो जो इक्विटी शेयर्स करता है वो किसी भी कंपनी की करती है, बट लेकिन हम FPI की बात करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की करते हैं, तो ये ऐसा नहीं करता, ऐसा करने के वो प्रोवाइड भी नहीं करता। इट मीन टू से FPI डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर्स विथ कंट्रोल ओवर द बिजनेस। तो कभी भी इन्वेस्टर को ये नहीं कहता कि भैया तुम इस बिजनेस पे ही कंट्रोल कर जाओ। ओके, तो दे आर सेवरल वी कैन से रिसोर्सेज, सेवरल मीन्स बाय विच वी कैन ऑल्सो स्टडी लाइक ऑटोमेटिक रूट। तो इसके लिए सरकार कुछ ऐसे भी रास्ते होते हैं जो पूर्ण रूप से उनके लिए खोल देती है। तो इन दिस सिनेरियो यू कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट द फॉरेन एंटिटी डज नॉट रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द RBI। तो जो हमारे पास ऑटोमेटिक जो रूल होता है या रूट होता है, इसके तत्वाधान में कह सकते हैं कि उनको किसी भी प्रकार के सरकार से, भारत की सरकार से, या कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, किसी भी प्रकार को उनको अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जब वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑटोमेटिक रूट मीन टू से दे गॉट फ्रीलांस, उनको स्वतंत्रता दी गई है, इंडिपेंडेंट दी गई। चलो भैया उनके साथ कह सकते कुछ ऐसे डील कर दी गई है जिन्हें उनको भिन्न भिन्न चीज़ों से उन्हें स्वतंत्रता दे दी गई है। राइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट रूट्स व्हाट सेज, द गवर्नमेंट रूट सेज दैट द फॉरेन एंटिटी हैज टू टेक द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो रूट होता है उसमें होता है कि भैया आपको सरकार से सबसे पहले अपने आप को मंजूरी लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा, और आपको ये भी बताना होगा कि विच टाइप्स ऑफ कंपनी, विच टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम योर फर्म्स। तो आपकी फर्म से किस प्रकार की चीज़ों का उत्सर्जन होगा, प्रोडक्शंस होगा, ये भी आपको बताना पड़ता है अंदर गवर्नमेंट रूट्स। ठीक है, समटाइम्स अदर वेन एवर वी आर डिस्कसिंग ओवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, तो इसके लिए सरकार ने एक लॉन्च भी किया है जिसको हम लोग बोलते हैं FIFP। ठीक है, इसका आप नाम याद कर लीजिएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, FIFP सरकार ने लॉन्च किया है। ये क्यों किया गया? तो एक्चुअली दिस फैसिलिटेट्स द सिंगल विंडो क्लियरेंस। ये सिंगल विंडो जो क्लियरेंस को ये सबसे पहले एक फैसिलिटी उपलब्ध कराती है ऑफ द एप्लीकेशंस विच आर थ्रू अप्रूवल रूट, जो अप्रूव होने के रास्ते में होते हैं, जो सरकार से मंजूरी लेने ही वाले होते हैं, वे सारे को ये भिन्न भिन्न प्रकार के क्लियरेंस कह सकते हैं प्रोवाइड करती है। एंड फाइनली दिस पोर्टल इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। और अंततः ये भारत में जो इसकी कंट्रोलिंग की जाती है, एडमिनिस्ट्रेट जो की जाती है, वह किया जाता है DPIIT के द्वारा। DPIIT का मतलब होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इज ओके, तो इस आधार पे की जाती है। अब अभी देखिए जो अभी वर्तमान की डेटा है, वर्तमान के डेटा के आधार पर दिया जा रहा है कि अभी भारत में FDI जो है डबल हो चुका है। यानी डबल की मतलब हम कह सकते हैं 2014-15 के जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, तो उस समय हमारे यहाँ 2014-15 नहीं, सॉरी 2013-14, ठीक है, 2013-14 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, उस समय हमारे यहाँ $36 बिलियन का हमारे पास FDI थी। ठीक है, और अभी ये डबल हो गया, यानी कह सकते हैं कि 36-72 बिलियन डॉलर अभी हमारे यहाँ का मार्केट में FDI हो चुका है। तो हम बात करते हैं करंट इश्यूज में हमारे क्या अपडेट हैं। तो एज पर द डेटा ऑफ वी कैन से DPIIT, ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डेटा बात करेंगे वह DPIIT की बात करेंगे, जो हमारा कहलाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ
इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इन्होंने बताया है कि भारत में अभी जो टोटल हमारा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वह इंक्रीज हो गया है और इंक्रीज होकर वो 18% चला गया है, ठीक है। और 18% होते ही वह अभी भारत में 73.46 बिलियन 2019-20 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, अभी हमारे यहाँ FDI 73.46 बिलियन डॉलर हमारे यहाँ FDI हो चुका है, जो 18% है अभी वर्तमान में। इज इट ओके? तो 18% का हमारा FDI जो है, इसका जो टोटल हमारा वैल्यू होता है, वर्थ होता है, वह हमारा होता है 73.46 बिलियन डॉलर, ठीक है। एक्चुअली सबसे पहले आप याद रखिएगा, जो DPIIT जो होती है, ये DPIIT वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो DPIIT जो होती है भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो होती है उसके अंतर्गत ये कार्य करती है, ठीक है। अब बात होती है कि वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डबल FDI नाउ गॉट इन आवर कंट्री टू मेक द स्टेबिलिटी इकोनॉमी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी कैन से रिफॉर्म्स ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट्स। तो नाउ हमारे देश में भी हमारा FDI डबल हो चुका है। तो एज पर द डेटा ऑफ 2013 एंड 14 वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो अभी हमने जस्ट आपको बताया कि 2013-14 में जो हमारे यहाँ FDI था उसके एवज में अभी हमारे यहाँ वर्तमान में डबल हो चुकी है। बिकॉज इन दैट पीरियड वेन एवर वी आर टॉकिंग, तो ड्यूरिंग 2013 एंड 14 इंडिया FDI's worth was only 36 बिलियन डॉलर। तो 2013-14 में भारत में जो FDI की जो कह सकते हैं वर्थ था वह 36 बिलियन डॉलर हमारा था, ठीक है। एंड नाउ इट गॉट 73.46 बिलियन डॉलर। तो ये माइनस बात है, डबल हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ यदि हम उस समय की बात करते हैं, 2013-14 की यदि बात करते हैं, तो उस समय हमारे पास जो FII था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स जो थे, वो हमारे पास थे 247 मिलियन डॉलर। व्हेन 2013-14 2013-14 में भारत में जो FII जो थी वह था 247 मिलियन डॉलर, ठीक है, टोटल उस समय था, ठीक है। एक्चुअली व्हाट्स इज आवर सेक्टर्स? अंडर द सेक्टर्स वी हैव टू आल्सो डिस्कस लाइक दैट on the base of financial sectors, foreign direct investment sectors. So the sectors that attracted the more financial inflows during 2019 to 20 including services. तो सबसे ज़्यादा भारत में यदि हम FDI की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा यदि FDI आया है तो वह हमारा सर्विस सेक्टर में अट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुआ या हार्डवेयर हुआ, इसमें इनकी सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं अट्रैक्शन हुई है, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट हुई है। टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रेडिंग इन ऑटोमोबाइल्स, तो ऐसे हमारे देश में जो सेक्टर हैं, खासतौर पे सर्विस सेक्टर में जो आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स हो जाते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस हो जाते हैं, ट्रेडिंग्स हो जाते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स इत्यादि जितने भी हमारे ये सर्विस सेक्टर के जो पार्ट हैं, ये सारे क्षेत्र में ही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा FDI का जो हुआ है उत्सर्जन हुआ है, कह सकते हैं बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और अभी वर्तमान के आपको डेटा एग्जाम में पूछ सकता है कि अभी हमारे यहाँ FDI सबसे ज़्यादा कौन सी देश की है या कौन सी देश सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कर रही है। तो यह आपके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो सकता है, जान लें। तो अभी एज पर द न्यू डेटा ऑफ DPIIT, ठीक है, तो DPIIT के डेटा के अनुसार यदि देखा जाए तो नाउ सिंगापुर इमर्ज्ड generated as the largest equity FDI sources in our country, contributing to inflows of $14.67। तो अभी वर्तमान में सिंगापुर भारत में सबसे ज़्यादा, सिंगापुर का FDI के रूप में भारत में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वैल्यू जो है अभी हमारे यहाँ $14.67 है, ठीक है। 14.67 हमारे यहाँ इसका इन्फ्लो हो चुका है। और इसके पीछे रीजन्स बहुत सारे हैं, जैसा कि हमें पता है कि भारत सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च की थी। तो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम लॉन्च किया था, इसके पीछे सरकार की रीजन्स यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा FDI को अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट के साथ ही साथ भिन्न भिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कर सकते हैं, सेवरल फर्म्स कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार की योजना थी, जिससे कि
each and every productions must be indigenous in our country and people of our particular nations can't be dependent on others productions from the abroad। तो सरकार की यह नेचर थी, एक प्रिंसिपल्स था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी प्रोडक्शंस हो वो हमारे डोमेस्टिक होनी चाहिए, इंडिजिनस होनी चाहिए। लाइक अभी भी आपने देखा कि कोविड-19 के तहत सरकार ने अभी आत्मनिर्भर भारत स्कीम्स जो लॉन्च किए, ठीक है, इसके अंतर्गत भी यही चीज़ हुआ था कि वी हैव टू यूज इंडिजिनस थिंग्स, डोमेस्टिक थिंग्स, वी मस्ट यूटिलाइज ईच एंड एवरी विच हैज बीन इन वी कैन से प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री अंदर अराउंड आवर कंट्रीज जोग्राफिकल बाउंड्री। तो इसके पीछे ये भी रीजन्स थी। तो जो ये इन्फ्लो किया, सबसे ज़्यादा जो एफडीआई इन्फ्लो किया और इसमें जो सिंगापुर की सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, इसके पीछे यही रीजन है कि जो इन्फ्लो ये हुआ है, दिस इन्फ्लो हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू द गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो इससे सबसे ज़्यादा भारत सरकार की जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स हो रही है, इसको कहीं न कहीं इसको बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूट किया गया है, बहुत ज़्यादा इसको मदद मिली है, ठीक है। तो इस आधार पे अभी एफडीआई हमारे यहाँ बढ़ चुकी है। अगले लेक्चर में मैं फिर पुनः कोई और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू दैट अभी जिस तरह से कोविड-19 का ये विश्व में बहुत बड़ा एक महामारी का प्रकोप है, इस प्रकोप में वी ऑल आर सफरिंग, वी ऑल आर फेसिंग दिस टाइप्स ऑफ चैलेंज। तो अभी हम लोग सभी इस चैलेंज को सामना भी कर रहे हैं, बट वी मस्ट बी एनर्जेटिक, we must be determined and very very careful, watchful towards our educations, our activity, our authority and our duty too। okay, तो हमें अपने कर्तव्यनिष्ठ रहना है, अपना कार्य करना है। what the responsibility we all have bestowed and imposed we have to follow and we have to be abided by serving which facilities या which types of we can say challenges bestowed to us। तो जो हम लोगों को दिया जा रहा है उसको हमें आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। अब जैसे ही लॉकडाउन छूटेगी, समाप्त होगी, जैसा कि अभी तो जो डेटा पीआईबी का है वो पीआईबी के डेटा के आधार पर दिखाया जा रहा है कि जितने भी कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर पर शैक्षणिक संस्थाएं जितने भी हैं, सेवरल डिसीजंस कैन बी मेड आफ्टर दिस मंथ यानी जुलाई, ड्यूरिंग जुलाई या इन जुलाई कह सकते हैं। जुलाई में ही सरकार इस पे किसी भी प्रकार के कह सकते हैं लेगी, विचार करेगी कि आगे क्या करनी है। जुलाई में स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, कोचिंग खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, ठीक है। तो जून तक वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट एंड द फर्दर रिएक्शंस व्हाट कैन बी अनाउंस बाय योर गवर्नमेंट। तो सरकार का जो भी होगी उसे हमें स्वागत ही करना होगा, बिकॉज वी ऑल आर हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ दिस एपिडेमिक डिजीज। तो ये विश्व विख्यात जो महामारी, इसके सामने हम सभी अपने आप को कह सकते हैं हेल्पलेस हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं। तो अब जो भी प्रकृति का, ऊपर वाला का जो आशीर्वाद होगा उसके साथ ही हमें रह करके आगे काज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। फिर हम अगले कुछ ऐसे ही करंट अफेयर्स लेकर के आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।